Okay, so continuing from where we left in the last lecture, we had covered the first three subsections. Uh, we have covered the introduction to the syntactic processing, and rule-based and hidden Markov model were the last things that we discussed, and we also saw the coding part. Now let's look at the parsing technique, that how this parsing technique can help us overcome the drawbacks of the POS tagging method. There are two types of it, constituency and dependency parsing. We will look into it in detail. And then we will also look at the named entity recognition part today, along with the IOB labeling. So these highlighted topics will be covered in today's lecture. CRF will be covered in the next lecture, along with the starting of semantic processing. So let's look at parsing होता क्या है. POS tagging में हमें दिक्कत ये आ रही थी that if there was some grammatical structure जो complex था तो वो उसको handle नहीं कर पाता था. And there were few examples also we saw that ठीक से नहीं हो पा रहा था processing. Now parsing can help us in breaking down that sentence into its grammatical constituents. पिछली बार हम सिर्फ इतना कर रहे थे कि हम उसको नाउन प्रोनाउन बस उतना बोल देते थे, बट नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू लुक एट द ग्रामेटिकल कनेक्शन एंड all of that. So parsing is one of the important step to build multiple linguistic structure of sentences. अगर ऐसा कुछ linguistic level का कोई भी ऐप बनाना है, parsing is a very important part of it. And these two are the different parsing techniques which will help us to get the job done. For example, I am putting these this sentence, who won the FIFA World Cup in 2014. अगर मैं Google पे सर्च कर रहा हूँ या फिर I'm asking it to Alexa or Siri, so that is the job of Alexa, or that is the job of the chatbot to understand the question and then reply. तो उसको पता होना चाहिए that I am talking about FIFA World Cup, especially in 2014, कि कौन जीता था. So that time limit को भी देखना पड़ेगा. तो ये चीजें, this kind of question answering system, if you are building let's say QA system, then parsing is part of it, because we need to understand that there is a connection between this FIFA World Cup. इतने से काम नहीं चलेगा कि आप फीफा को नाउन बोल दो, वर्ल्ड को नाउन बोल दो एंड कप को कुछ प्रोनाउन बोल दो. ऐसा कुछ नहीं चलेगा कि बस उसका बता दिया कि ये कौन सी कैटेगरी का एंड यू आर डन. You have to understand the meaning of that term, and then only you can answer. For example, अब यहाँ पे we have this sentence of the quick brown fox jumps over the table. Now we are going to break it into multiple parts. The quick brown fox will be a noun, jumps will be a verb, and over the table will be the prepositional phrase. So it is better than simple method वहाँ पे हम previously we were doing only the tagging of noun pronoun to a single word, but यहाँ पे हम पूरा पूरा subsection of the sentence ले रहे हैं and we are able to get the job done. Let's look at the constituency parsing. तो दो तरह का है. पहले वाला constituency parsing है, बाद में dependency भी देखेंगे. So constituency में क्या हो रहा है? For example, we have this sentence, YouTube is a great platform. Now YouTube is a noun phrase and is a great platform is the verb phrase. मतलब वो break कर पा रहा है. And constituency parsing is the process of identifying the constituents. Constituents बनाने हैं in a sentence and the relation between them. तो आपस में उनका देखना है कि YouTube अलग है, is a great platform अलग है, and we can look at it like this. For example, मेरे पास ये word, ये sentence था, YouTube is a great platform, full stop, end में. Now we know that if the sentence is given, we can break it into noun phrase, verb phrase, and the full stop to end में आ ही जाएगा. And within that noun also, NNP is one of the noun phrase ka detailed version, according to the constituency parse tree rule. And then there is this VBZ, this is verb. Within that we have noun phrase where we are having this a great platform, where this is DT is determinant, JJ is adjective, NN is noun. So there are this level. This is the way to get the job done to build a parse tree. These are the different uh, subsections of those categories of just noun phrase and verb phrase. We have this verb and then determinant, then adjective. So detail में थोड़ा सा बन जाता है, and this is a good way to get the job done. So there is this rule. हमें ये सब करना है. To summarize,
the chart on the previous slide, हमें क्या करना है that we have these three things. Initially we have the sentence, we have YouTube is a great platform, ये sentence था. We saw that YouTube or is a great platform को अलग-अलग किया. Now we have these words, different words को हम part of speech tag देंगे. These are the different part of speech tags: NNP, VBZ, NP, DT, JJ, and this NN. तो let's look at this slide in detail. क्या हो रहा है? Constituency past tree always contain the words of a sentence as its terminal node. हमने देखा भी अभी पीछे के जो भी हमारा सेंटेंस था उसके हर वर्ड को हम एंड में नोड पे रख रहे थे, राइट? तो जो मतलब एंड नोड आ रहा है, मतलब एक तरह का लीफ आ रहा है, वहां पे होगा उसका वो सारा. एंड ईच वर्ड हैज ए पेरेंट नोड कंटेनिंग इट्स पार्ट ऑफ स्पीच टैग. तो उसका जो पेरेंट होगा, उसका जो ये पेरेंट है, दीज आर द पीओएस टैग्स. ठीक है, ये 5 हैं जो. Then all the other non-terminal nodes represent the constituents of the sentence and are usually one of the verb phrase, noun phrase or the prepositional phrase. तो वो हमने वो देखा था जो पीछे NP, VP, तो वो PP भी हो सकता है because prepositional phrase भी हो सकता है. In this example, at the first level below the root, the sentence has been split into a noun phrase made up of single word YouTube एंड वर्ब फ्रेज. तो वो हमने देख ही लिया था कि एन पी और वीपी में उसने 2 पार्ट्स में किया था. और उसके अंदर सिमिलरली द नाउन फ्रेज इज डिवाइडेड इनटू डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड नाउन. तो ये जो हिरारिकल मेथड है, सो दिस इज also following the context free grammar rule. So the parsing technique is handling the sentence and breaking it into these kind of uh, different POS tags. Now constituency parsing has been used in word processing, grammar checking, अलग अलग मतलब सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है. वी विल ऑल्सो लुक एट वन ऑफ द एप्लीकेशन, ग्रामरली जैसा है एक एप्लीकेशन देखेंगे. एंड वी विल look at the active passive voice detection based on the sentence. So let's look at this example. We saw the Statue of Liberty flying over New York. अब यहाँ पे इसके दो मतलब हो सकते हैं. या तो ये हो सकता है दैट स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज फ्लाइंग, है ना. बट सेकंड वाला जो ज्यादा बेटर लग रहा है और सही भी लग रहा है वो है कि व्हेन वी वर फ्लाइंग ओवर न्यूयॉर्क, लेट्स से इन ए फ्लाइट, वी सॉ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. तो पर्सन सॉ दैट स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज फ्लाइंग एंड द सेकंड इज कि वो बंदा खुद प्लेन में था एंड ही सॉ दैट फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द टॉप. तो दो मतलब हो सकते हैं. इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज. To understand the ambiguity with the past tree, let's consider the following example. For example, मेरे पास एक और sentence है. Look at the man with one eye. तो इसके दो मतलब हो सकते हैं. One can be look at the man using only one of his eyes. Second है कि look at the man who has one eye. तो अगर हम ब्रेक कर भी रहे हैं, so in this case look at the man with one eye, ये दो पार्ट्स में हमने कर लिया, verb and prepositional phrase में. And then we are able to break it into more detailed POS tags. तो इसके through left hand side के through we are kind of having this interpretation that look at the man using one of his eye. But on the right hand side, when we have look as a verb and then add the man with one eye as a prepositional phrase, तो उसको हमने और आगे बांटा. ये वाला preposition बन गया. Then this is noun and noun वाले के अंदर भी NP and PP है. एंड मोमेंट तक ये चलता रहा. सो इसके थ्रू हमें पता चला दैट द इंटरप्रिटेशन इज लुक एट द मैन हु हैज वन आई. तो मतलब दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है डिपेंडिंग ऑन हम हमारा इनिशियल ब्रेकिंग कैसे कर रहे हैं. तो there are two past trees possible for this sentence जो पीछे अभी दिखाया है. If we are able to identify the relationship among the words instead of looking at the individual constituents or the PS tags, then understanding each word with, यहाँ पे मेन चीज यही बताई जा रही है कि आप मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आप अपने कर रहे हो, अंडरस्टैंड मीनिंग करने के लिए इट इज़ बेटर टू यूज डिपेंडेंसी पार्सिंग रेदर देन ओनली दोज कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग. तो डिपेंडेंसी पार्सिंग के बारे में यहाँ बात हो रही है दैट क्योंकि मैक्सिमम नेचुरल लैंग्वेजेस आर इनहेरेंटली एम्बिगुअस. बहुत सारे डिफरेंट केसेस होते हैं एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश हियर, बट इट कैन बी फॉर एनी लैंग्वेज. इट कैन बी हिंदी, पंजाबी, बंगाली, Marathi. So there are hundred and more than 100 differences and ambiguities even for
जस्ट ए स्मॉल पैराग्राफ, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, ग्रामर नहीं पता, वो कुछ और ही बना देगा उसको. स्पेशली इन पोएम्स ऑल्सो वेयर इंटरप्रिटेशन इज so much required that you are unable to understand a poem, अगर कोई समझा नहीं रहा हमें, तो बहुत सारे केसेस में होता है कि पोएम को समझना तो बहुत ही टफ है. सो जस्ट इमेजिन इफ वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क ऑन पोएम्स टू इंटरप्रेट दैट व्हाट वी आर what the writer is trying to say in a poem through this machine learning software. तो dependency parsing देखते हैं. So let's introduce an alternate paradigm of grammar called this dependency parsing, in which we do not form the consequences. वो मतलब NP, VP, PP कुछ नहीं करना, but rather establish a dependency between the words themselves. तो words का आपस में मतलब देख लेंगे कि वो आगे पीछे कैसे connected हैं एक दूसरे के साथ. So let's look at this thing. For example, मेरे पास ये एक sentence है, YouTube is a great platform. तो उसको हमने कैसे करना है, ये 4 स्टेप लिखे हैं. दिस इज द एल्गोरिथम फॉर डिपेंडेंसी पास ट्री. ईच वर्ड इज ए नोड इन पास ट्री. ठीक है, समझ में आ रहा है. एंड देन देयर इज एग्जैक्टली वन नोड विद नो इनकमिंग आर्क. मतलब इसमें से जो रूट होगा वही है जिसके अंदर कुछ इन मतलब इनकमिंग आर्क नहीं है. मतलब अब देखो यहाँ पे ये वाला डिटर्मिनेंट है या वर्ब है या ये वाला यूट्यूब है, तो इनके सबके एरो आ रहे हैं, इनसाइड आ रहा है. बट इफ लेट्स से प्लेटफॉर्म इज द रूट हेयर, इसका कुछ इनकमिंग नहीं है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है दैट प्लेटफॉर्म इज द रूट. नाउ ईच नॉन रूट हैज एग्जैक्टली वन इनकमिंग आर्क. दिख भी रहा है कि भाई इसमें ग्रेट वाले में भी एक एरो जा रहा है, ए में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, यूट्यूब में भी जा रहा है, बट प्लेटफॉर्म में नहीं जा रहा था. नाउ ईच नॉन रूट हैज, ये हो गया. देर इज ए यूनिक पाथ फ्रॉम रूट नोड टू ईच नॉन रूट नोड. समझ में आ रहा है. और कनेक्शन हमने सारे बना लिए. सपोज हमने चारों कनेक्शन बना लिए. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्लेटफॉर्म इज ए नाउन and there is a punctuation on the right hand side of it, and left hand side पे a mode है, ठीक है, adjunct modifier. and then this platform का आप a के साथ connection कर रहे हो, a is a determinant for it. प्लेटफॉर्म को आप इससे जोड़ रहे हो, दिस इज कॉपुला. कॉपुला मीन्स इन लिटरेचर ऑफ NLP दैट इट इज मेकिंग सम कनेक्शन. देन यू आर मेकिंग दिस एन सब, मतलब इसको हम कहते हैं एन सब होता है, मतलब सब्जेक्ट है, एन से कुछ था. आई एम अनेबल टू रिकॉल द प्रॉपर नेम ऑफ दिस एन सब जे. सो दिस इज सब्जेक्ट. सो इन दिस केस प्लेटफॉर्म का सब एज ए सब्जेक्ट कनेक्शन बनाया जा रहा है यूट्यूब के साथ. सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू मेक ए डिपेंडेंसी पास ट्री. फॉर एग्जाम्पल, मैं महात्मा गांधी सर्च करता हूँ. we know that his full name was मोहनदास करमचंद गांधी and he is called the father of the nation. तो ऐसा कुछ करके अगर गूगल सर्च करूं दैट व्हेन वाज और वेयर वाज मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न, तो वो अगर हमारा आउटपुट आ रहा है मोहनदास करमचंद गांधी वाज बॉर्न ऑन दिस थिंग, ऑन दिस डेट इन दिस लोकेशन. तो अगर हम उसका आपस में कनेक्शन ढूंढेंगे एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. तो इस केस में हमारा ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ पे एक भी इनपुट नहीं आ रहा, ठीक है. तो इसमें रूट कौन सा होगा. क्लियरली वी कैन सी दैट टू इज समथिंग जहाँ पे इनपुट नहीं आ रहा. नहीं, ये वाला बॉर्न वाला. सो इन दिस बॉर्न इनपुट नहीं आ रहा, ठीक है. बॉर्न वाला हमेशा आउटपुट दे रहा है इसमें. सो बॉर्न इज द रूट नोड हेयर एंड वी हैव मेड ऑल द कनेक्शंस. यहाँ पे हमें पता चल रहा है दैट मोहनदास करमचंद गांधी, ऑल ऑफ दीज 3 वर्ड्स आर ए कंपाउंड नाउन. ठीक है, मतलब ये नाउन 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 3 बार है एंड कंपाउंड है, मतलब ये तीनों इकट्ठे हैं. एंड दिस डेट, CD, NNP, ये डिटेल हैं. मतलब वी कैन लुक एट द डिटेल्ड version of this. I will also show you a link where we can see all of these different variations. So there are different applications. For example, मेरे को मतलब let's say I want to extract the date of birth from Google. मैंने कुछ सर्च किया, I want to find the date of birth of let's say Steve Jobs. तो वो डेट ऑफ बर्थ सिर्फ आउटपुट दे देगा. तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं where we can also try to find the relationship extraction between different people in a sentence. Information extract कर सकते हो, क्वेश्चन आंसरिंग बना सकते हो, and you can also work around the web search engine. So this is one of the link you can explore on your end. This will take you to one website where whichever phrase you write, it will give you this visualizing of the dependency parser. तो ये एक sentence है, suppose economic news had little effect
ऑन द फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो मेरा हैड है यहाँ पे कुछ भी इनकमिंग नहीं है, बाकी सब में इनकमिंग है। सो हैड इज माय रूट नोड एंड एन सब्जेक्ट करके इसने न्यूज़ के साथ लिंक बनाया, ए मॉडिफायर करके इकोनॉमिक के साथ बनाया, एंड ऑल्सो द पीओएस टैग्स आर गिवन एट द बॉटम, एडजेक्टिव नाउन वर्ब वो सब है यहाँ पे। सो दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन कैन बी डन। यहाँ पे आप मॉडल भी चेंज कर सकते हो। I have put a screenshot but you can experiment on this website. You can go to this link and play with it. तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, just a second. For example मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ यहाँ पे एंड हाँ, तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक न्यूज़ वाला सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, फॉर एग्जांपल साहिल इज फैकल्टी इन थापर CSED, ऐसे कुछ लिख देते हैं। लेट्स लुक कि ये कैसे इसको बना रहा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इन दिस केस इज को इसने रूट बनाया है एंड बाकी सबके भी कनेक्शन इसने ऐसे करके बना के दे दिए। एंड वी कैन चेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मतलब यहाँ लैंग्वेज बेस्ड है तो इंग्लिश वाला हमने यूज करा हुआ है बाय डिफॉल्ट। यू कैन ऑल्सो चेंज इट, अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी यहाँ पे ट्राई करके बना सकते हो। सो दिस इज हाउ द डिपेंडेंसी विजुअलाइजर लुक्स लाइक। Now let's go back to the slide. हाँ, तो the word had is the root in this case, यहाँ पे had is the root और वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है that the phrase economic news is the nominal subject. Nominal subject था, yes, now I can recall, तो nominal था ये। So it is kind of a subject only कि वो मतलब सब्जेक्ट क्या उस सेंटेंस का। द फ्रेज लिटिल इफेक्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हर तरह की चीज़ का यहाँ पे डिस्कशन करा हुआ है एंड ऑल द वर्ड्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड कि इसमें क्या क्या हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ ऐसा ऐप मिले, जैसे ये हेमिंगवे है, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू ग्रामरली। सो हेमिंगवे का यहाँ पे लिंक भी डाला है, दिस इज द वेबसाइट hemingwayapp.com। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें मल्टीपल चीजें समझ में आ रही हैं। इस ये एडवर्ब्स भी चेक कर रहा है, ये यूज ऑफ पैसिव वॉइस भी बता पा रहा है। जो पिंक एरिया है ये वाला, यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रेज हैज ए सिंपलर ऑल्टरनेटिव, कुछ और अगर आप इसमें कर सकते हो तो मतलब यू कैन चेंज इफ यू वांट टू। sentence is very hard to read, red wala, and yellow wala it is hard to read. So different things are being highlighted here. This kind of implementation can be done using uh, this technique, right? And now if we are also looking at the grammarly में भी यही सब है। So we know that if we are using this dependency parser and we are able to make the connections between the words, there are multiple suggestions that can be incorporated, and you can even build your own Grammarly software for spelling errors or maybe the spell correctors that we have seen earlier. So I will now discuss three codes with you. Active passive detection करना है and we will actually implement active passive voice detection over the 40 different sentences. वो dataset CSV file बना हुआ है. So let me take you to the coding page. So I have already put these three codes in my GitHub page in the Rapids MLDS repository. So I'm going to take you to these three one by one. So for example मैंने मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस का करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे करके हेमिंगवे भी हमें बता पा रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने करना चाहा तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज this spacey library which I told in the yesterday's lecture also कि spacey library हम use करेंगे and display करने के लिए display C होगा, right? And then we are loading the model also. Now how to do a dependency parse? For example मेरे पास these are the four sentences in the active voice and similarly same sentences are in the passive voice. And अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में NLP का ये उठवा लेता हूँ कि चलो मेरे को फर्स्ट सेंटेंस हेंस ले एग्स का बना के दो, एंड इफ आई एम प्रिंटिंग दिस टोकन टेक्स्ट एंड द टोकन डिपेंडेंसी, तो मेरे को यहाँ पे ये दे रहा है दैट हेंस इज ए नॉमिनल सब्जेक्ट, ले इज द रूट, एग्स इज माय डी ऑब्जेक्ट एंड डॉट इज माय पंक्चुएशन। तो ये मेरे को बता पा रहा है। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज द सेम थिंग यूजिंग
दिस डिस्प्लेसी क्लास डॉट रेंडर करोगे तो इसमें डॉक कॉमा स्टाइल DEP एंड देन जुपिटर इक्वल टू ट्रू। अगर आप ये जुपिटर ट्रू नहीं करोगे तो उसमें एरर आ जाता है, मतलब ये शो नहीं करता ये फिगर, एंड दिस इज डिपेंडेंसी, तो स्टाइल डिपेंडेंसी में शो कर देता है ये। Similarly, if you are going through the dependency relationship, it looks like one would need it to know the linguistic and grammar. तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अब औरों के लिए भी कर देता हूँ, जैसे एक्टिव वाला तो हो ही गया। एक्टिव वाले में वी आर एबल टू शो दैट ये एन नॉमिनल सब्जेक्ट है, डी ऑब्जेक्ट है, राइट। देन मतलब ये अलग अलग सेंटेंसेस का दिखा रहा है हमें, तीन चार सेंटेंस जो थे सबको उसने कर दिया शो। सिमिलरली इट कैन बी शोन फॉर द पैसिव वॉइस ऑल्सो। तो पैसिव वॉइस वाले के भी इसने तीन चार सेंटेंसेस का कर दिया, 1 2 3 4। नाउ इफ यू स्क्रॉल थ्रू दिस केयरफुली, you will see there is something called this n subject pass, right? तो nominal subject passive, तो ये n subject passive is not available in active voice। अगर आप relationship देख ही रहे हो and we want to build the active passive classifier, तो हमें इन relationships को use करके we need to build something where we can actually make a classification between the different sentences, that if it is in the active voice or the passive voice। तो यहाँ पे मेरे को इतना तो क्लियरली दिख रहा है कि एक्टिव वाले में एन सब्जेक्ट पैसिव नहीं था, बट इस वाले में है, नॉमिनल सब्जेक्ट पैसिव नाम की ये चीज ऐड हो गई है इन पैसिव वॉइस। रवजोत, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, सो एन सब्जेक्ट पैसिव अगर हम पकड़ लें, देन वी कैन मेक ए रूल आउट ऑफ दिस, दैट अगर मेरे को पूरे सेंटेंस को ऐसे होने के बाद एन सब्जेक्टिव पैसिव वाला मिल रहा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। So the summary is that spacey dependency parser lets us visualize the relationships, and we have also seen that अगर आपने पैसिव वॉइस बताना है तो n सब्जेक्ट पास ये लिखा होगा उसमें, दिस इज नॉमिनल सब्जेक्ट पैसिव, तो ये होगा, तो ये इसका मतलब इस डिपेंडेंसी रिलेशनशिप के हिसाब से पैसिव वॉइस है। नाउ अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई जो मैंने टेक्निक बताई है कि ये सही है, तो लेट्स डू द सेम थिंग अगेन, एंड वी विल आल्सो मेक दिस थिंग। हाउ डू वी इम्प्लीमेंट द रूल? इफ डिपेंडेंसी इज एन सब्जेक्टिव पैसिव, देन पैसिव एल्स नॉट, तो मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम मैचर नाम का ये उठाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम दिस स्पेसी लाइब्रेरी। मैचर क्लास का मैचर ऑब्जेक्ट उठा लो, एंड देन अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हो, यू कैन क्लिक हेयर एंड गो टू द डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे इफ यू वांट टू सी, तो ये यहाँ पे मैचर का पूरा डिटेल दिया हुआ है, यू कैन एक्सप्लोर दिस पेज एंड लर्न मोर अबाउट मैचर। तो ठीक है, यहाँ थे हम। नाउ आई एम डूइंग द कोडिंग कि भाई मेरे को पहला सेंटेंस उठाओ और पहले सेंटेंस को विजुलाइज करवाओ, और इसमें मेरे को दिख रहा है कि एन सब्जेक्ट पैसिव गिवन है, ठीक है। अब इसको पकड़ना हमने। नाउ क्रिएट ए रूल विद मैचर, तो यहाँ पे हम डिक्शनरी बना रहे हैं जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा POS नाउन है, तो मैं सारे नाउन वाला उठाने चाहता हूँ कि भाई मेरे को पहले ये बताओ उस सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ पे है, मेरे को ऐसा कुछ ढूंढना है, राइट। एंड देन रूल मेरा ये है कि POS नाउन होना चाहिए, और उसमें वो कैब में हम सर्च कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट रूल। तो अगर आप उसको प्रिंट करोगे, यू विल सी दैट एट लोकेशन 0 till 1 and 4, 5 ये इसको दो इसमें वो मिल रहे हैं, मतलब इसका नाउन नाउन मिल रहा है उसको। तो जो ये सेंटेंस था ये वाला, एग्स आर लेड बाय हेंस, तो इस केस में ये कह रहा है कि 0 पे जो स्टार्ट हो रहा है 0 से 1 वाला ये एग है, और 4 5 जो एंड वाला है, ठीक है। तो हेंस इज ऑल्सो नाउन, तो ये दोनों नाउन्स को वो बता पा रहा है और उसने दोनों को प्रिंट करवा दिया। अगर आप 0:1 और 4:5 प्रिंट करवाओगे तो दोनों नाउन प्रिंट करवा दिए जो उसने बताए थे ऊपर। नाउ लेट्स क्रिएट ए रूल फॉर पैसिव वॉइस। अभी हमने सिर्फ नाउन को चेक किया था, नाउ वी आर मेकिंग दिस रूल कि भाई अगर डिपेंडेंसी एन सब्जेक्ट पास आ रहा है तो मैं उसको उठाऊं सिर्फ। तो मेरे को ये कह रहा है कि भाई सिर्फ पहले वाले केस में ऐसा आ रहा है कि ये मतलब मेरा एन सब्जेक्टिव पास है। तो बेस्ड ऑन दिस हमने सेम चीज
ऐसे करके इसको बताया कि एक्टिव वॉइस पे अगर करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो डू इट फॉर एक्टिव। तो एक्टिव वॉइस में अगर हम प्रिंट करेंगे एंड वी आर ट्राइंग टू अप्लाई द सेम रूल के अगर मेरे को एन सब्जेक्ट पास मिलता है, तो इसमें तो वो नहीं मिला। मतलब अगर आप ये एरिया देखोगे, एन सब्जेक्ट पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एन सब्जेक्ट पैसिव क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे उसने एम्प्टी दे दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मेक ए फंक्शन दैट इम्प्लीमेंट्स दिस लॉजिक। तो फंक्शन ये है जो अभी ऊपर बताया था स्टार्टिंग में कि हमें ऐसा बनाना है। तो अगर मेरा मैचर डॉग का लेंथ, मतलब ऑब्वियसली मैचर डॉग क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है मेरे को ये लिस्ट। अगर उसकी लेंथ 0 से ज्यादा है तो वो ट्रू कर देगा दैट दिस इज द पैसिव, ठीक है, पैसिव वाला है इसमें आउटपुट, अदरवाइज नहीं है। तो दिस इज हाउ द पाइपलाइन विल वर्क। अगर मैं उसको अब अप्लाई कर दूं इस पैसिव नाम के फंक्शन को पूरे के पूरे एक्टिव वाले पे और वर्सेस पैसिव वाले पे, तो ठीक से आउटपुट दे रहा है वो। एक्टिव वाले में वो फॉल्स कर रहा है फॉर ईच सेंटेंस एंड इट इज सेइंग ट्रू फॉर ईच सेंटेंस इन द पैसिव वाला जो हमने ऊपर लिस्ट बनाया था। सो नाउ समरी इज दैट वी कैन वर्क अराउंड दिस थिंग। तो हमारा एक POC बन गया, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बन गया। वी हैव सीन इट ऑन 4 sentences. Now what if we want to implement the same thing over a bigger data set? ठीक है, तो अगर बिगर डेटा सेट पे काम करना है, आई हैव ऑलरेडी पुट दिस थिंग हेयर, मैं दिखा देता हूँ। अपलोड तो किया था मैंने, ये रहा एक्टिव पैसिव डॉट CSV। तो इस CSV फाइल में टोटल 40 सेंटेंसेस हैं। तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एंड वी विल चेक इट फॉर एवरीथिंग। सारे के सारे के लिए चेक करेंगे कि भाई कि ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, फॉर ऑल ऑफ देम। सो द रूल इज सेम, सब कुछ वही करेंगे, मैचर लगाएंगे एंड विजुलाइज करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का जो डेटा सेट है उसको हमने फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को बस देखा। तो ऐसे करके दिख रहा है कि हमारे 2 कॉलम है, एक में एक्टिव है, उसी का पैसिव वर्जन इज द सेकंड कॉलम। तो शेप देख लो, 40,2 है, टोटल 40 सेंटेंसेस हैं। एंड व्हेन वी आर मेकिंग द रूल, पैसिव रूल बना लो। रूल इज दैट इफ द डिपेंडेंसी इज इक्वल टू एन सब्जेक्ट पास, तो ये रूल बन गया, ठीक है। जहां जहां पे है वो उठवा देगा। एंड इफ माई इज पैसिव फंक्शन का जो लेंथ ज्यादा है वो ट्रू कर देगा, मतलब ट्रू फॉल्स के टर्म में आउटपुट दे देगा। नाउ चेक द रूल ऑन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। तो हमने कोड चलाया कि भाई मेरे को वो इज पैसिव वाला अगर नहीं है, ठीक है, इफ नॉट, अगर वो फॉल्स है तो उसको काउंट करेगा और वो 40 प्रिंट करवा रहा है, मतलब एक्टिव वाले ठीक से प्रिंट हो पा रहे हैं एंड पैसिव वाले भी ठीक से हो पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं कोड खत्म कर सकता था, बट आई वांटेड टू डिस्कस वन मोर थिंग। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस डिपेंडेंसीज, आई कैन सी इन दिस दैट यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल F करके सर्च करूँ पैसिव, ठीक है, तो यहाँ पे 3 जगह पे मेरे को पैसिव दिख रहा है in the alphabetical listing: passive auxiliary, aux pass, then clausal passive subject, C subj pass, and then जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं N subj pass, this is passive nominal subject, ठीक है। तो ये passive nominal subject है and we were only focusing on this। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेंटेंस हो सकता है कि N subjective pass वाला, मतलब passive nominal subject वाले में नहीं हो रहा डिटेक्ट। तो उस केस में यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड योर फंक्शन टू इंक्लूड द क्लॉजल पैसिव सब्जेक्ट और दिस ऑक्सिलरी पैसिव वाला पार्ट, राइट, एंड दैट कैन इजीली बी डन यूजिंग दिस थिंग। तो आप उसमें सिर्फ एक पास करने के बजाय मल्टीपल भी पास कर सकते हो कि दैट विद इन दैट डिपेंडेंसी मेरे को मल्टीपल चीजें चेक करनी है। तो मैं मल्टीपल चीजें चेक करने के लिए अगर आप चेक करोगे देन वो पैसिव वाला एक्टिव पैसिव दोनों हैंडल हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ और आर दिस जो हमारा ये छोटा सा डेटा सेट था 40 सेंटेंसेस का, इस केस में तो बिना मल्टीपल चीजें लगाई हो गया 40-40 बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रहा था। बट इफ यू वांट टू वर्क ऑन लेट्स से बिगर डेटा सेट में भी थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं और आपको श्योरली काम करना है, तो यू नो दैट अब इसमें ऑक्स पास, सी सब्ज पास और ये एन सब्ज पास कर सकते हो, right, and that can be added here at this point and you can get the job done even for the thousands of sentences। तो काफी अच्छे से ये हो जाएगा for larger corpus। Now let's go back to our slide and continue with the topic।
Now I am going to talk about the NER and CRF. We are going to cover the NER, name entity recognition, in today's class only. CRF will be in the next lecture. तो ये टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं. NER का इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आज ही करवा दूंगा. So नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का मतलब है दैट इफ आई सर्च ऑन गूगल व्हेन इज रोहित शर्मा's बर्थडे, तो ऐसे करके वो दे रहा है, डेट दे रहा है, तो उसको we need to teach our model that how मतलब आंसर कैसे देना है, एंड विद इन क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम you should be able to identify कि रोहित शर्मा यहाँ पे नेम है, राइट. एंड गूगल ने तो ये काम बड़े इजीली कर दिया. रोहित शर्मा स्लैश डेट ऑफ बर्थ, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ एंड दिस इज द एज, वो ऐसे करके स्क्रीनशॉट दे रहा है. नाउ नेम एंटिटी होता क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी गिवन ए प्रॉपर नेम सच एज पर्सन, सिटी, कंपनी, कोई भी नाम हो सकता है. एंड अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर आस्किंग Alexa that who is the lead actor in Bahubali, or you are saying that okay Google, show me the direction to Elante Mall. Elante is a mall in Chandigarh. So these are the two different things. अब गूगल को कैसे पता चलेगा? गूगल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इलांते इज NER, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, एंड इट हैज टू गिव अस द डायरेक्शन फ्रॉम आवर करंट लोकेशन टू दैट डेस्टिनेशन लोकेशन, राइट. तो ये चीज वो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन के थ्रू ही काम होगा. अगर आप ऐसा नहीं करोगे, NER नहीं बता पा रहे हो, then you cannot expect to make an app out of it. Now similarly, this is also possible for, let's say we have a restaurant, ठीक है, चंडीगढ़ में ये है, और इवन इट इज इन दिल्ली, लुधियाना, मल्टीपल जगहों पे है. बट NER का क्या फायदा है यहाँ पे? ये इसलिए लगाया है बिकॉज बेस्ड ऑन द रिव्यूज उसके कुछ कीवर्ड हाईलाइट्स आ गए राइट हैंड साइड पे. एंड इफ वी आर एबल टू हाईलाइट, अगर जो ये रिव्यू हाईलाइट्स करने हैं, इसका मतलब है दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द कीवर्ड्स आउट ऑफ द रिव्यूज, कि भाई मेन मेन चीजें बता कौन कौन सी अच्छी हैं, अगर रेटिंग अच्छी है तो. तो यहाँ पे दाल, पालक, पेड़ा, दीज थिंग्स आर द ईटरीज, राइट. आप इसको खा सकते हो. एंड बिकॉज इसमें अच्छे रिव्यू में ये चीजें हाईलाइट हो रखी हैं, तो काफी हाई चांस है कि ये चीजें आप वहां जाके ट्राई करोगे. तो if someone wants to build a recommender system for what you want to eat for a particular restaurant, you can build an application out of it, that you are looking at the reviews, you are trying to find the NER out of it, you are trying to find that what is the good thing there. तो वो चीज आप इजीली उठा सकते हो, एंड ऐसी ऐप बना के उसको हाईलाइट करके ऐसे राइट हैंड साइड पे जैसे इन्होंने दिखाया है, दिस कैन बी मेड आउट ऑफ इट. तो ये जोमेटो में ऑलरेडी इन्होंने करा हुआ है, बट दिस काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल थ्रू नेम एंटिटी रिकॉग्निशन ओनली. यू आर ट्राइंग टू सिलेक्ट द कीवर्ड्स. यहाँ पे सिंगल वर्ड ही नहीं, 3 3 वर्ड वाले भी नाम उसने ठीक से हाईलाइट करके यहाँ डाले हुए हैं. और इतने सारे डिशेज हैं और इतना कुछ होता है दैट दिस इज ऑटोमेटिक ओनली. ये कोडिंग के थ्रू ही उन्होंने करा है. दिस इज नॉट पॉसिबल टू मैनुअली डू. मतलब फिर तो उनको हजारों एम्प्लॉय इसी काम पे लगाने पड़ेंगे कि भाई बेस्ट वाली चीज उठा के साइड पे लिख दो. तो उन्होंने ऑटोमेटिक फॉर्म में ये किया हुआ है, एंड दिस इज NER बेस्ड प्रोजेक्ट. So NER techniques are applied in various fields such as search engine, chatbot, and mainly in the entity extraction in long text such as reviews, books, blogs, comments. तो NER enables us to easily identify the key elements. अब वो कोई भी नाम हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है. जो हाईलाइट्स होंगे वो यहाँ पे हमें सामने दिख जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे it can be a person, it can be GPE, geopolitical entity, it can be organization, location, product, date, event, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो these kind of all these 7 categories are part of NER only. So अगर आप कल को कोडिंग कर रहे हो and you are trying to find that what is the person in this, who is the person in this, what is the organization, क्या लोकेशन है, तो वो सब आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा जब आप उसको कोड चलाओगे और आउटपुट लोगे. नाउ फॉर एग्जांपल ऐसे केसेस भी होते हैं कि जो मैक्सिमम हमारे इनबिल्ट वाले हैं, जैसे अब हम स्पेसी वाला यूज करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स होते हैं. मतलब एरिया, अब मेडिकल एरिया उसमें कवर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल अगर होगा भी, तो ये एसिटामिनोफेन उसका नाम नहीं होगा, या आइबुप्रोफेन नहीं होगा. माइग्रेन मे और मे नॉट बी NER इन दैट डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट. तो ऐसे वाली एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हो. मे बी यू कैन बिल्ड ए NER फॉर ए मेडिकल डोमेन प्रॉब्लम.
सो दीज आर द डिफरेंट NERs, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का एप्लीकेशन में बात हो रही है। प्लस इट इज मतलब मेनली ये मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इनबिल्ट लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हो तो उसमें वो मेडिकल डोमेन का या मे बी कोई कोई ऐसा डोमेन जो बहुत फेमस ना हो, तो वैसा कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो बाय डिफ़ॉल्ट। उसके लिए आपको बिल्ड करना पड़ेगा खुद का। फॉर एग्जांपल पीओएस टैग्स फॉर, अगर आप इसको पीओएस टैग्स के थ्रू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नाउन पीओएस टैग्स पे फोकस करते हैं, एंड आई हैव टू सेंटेंसेस, जावा इज एन आइलैंड इन इंडोनेशिया वर्सेस जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये आउटपुट तो दे देगा कि ये दोनों जावा नाउन है। मतलब अगर आप पीओएस टैगिंग करोगे ना पीओएस में, यू विल गेट द आउटपुट दैट जावा इज ए नाउन इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। पर वो ये नहीं बताएगा कि भाई एक लोकेशन है, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो ये वाली जो चीज है, मतलब ये चीज तभी पता चलेगी अगर आप NER के थ्रू काम करोगे रेदर देन ओनली पीओएस टैग्स। सिमिलरली एप्पल अगर है तो इट कैन बी अ फ्रूट, इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी नाउन तो वो दोनों में बोल देगा, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्सेस एक खाने की चीज है तो वो चीज नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन पे देख लेते हैं दैट इफ लेट्स से आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ए सिंपल, वेरी सिंपल नेम एंटिटी रिकॉग्निशन मॉडल। फॉर एग्जांपल मेरे को इतना करना है दैट हाउ मेनी फैकल्टी इन थापर आर होल्डिंग PhD डिग्री, यहाँ पे मैंने शायद लिखा भी होगा कहीं पे, हाँ ये रहा। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये ढूंढना है दैट फैकल्टी इन थापर हु आर ए PhD होल्डर। तो इट विल इन्वॉल्व defining simple rules such as identification of faculty entities by searching the PhD in the prefix, और मे बी आप डॉक्टर या DR सर्च कर रहे हो, बट ये भी हो सकता है कि कोई बंदा लिखता ही नहीं है, मतलब उसको है ही नहीं कि मैं लिखूं, ठीक है, DR डॉक्टर PhD कहीं पे मैंने लिखा, बट स्टिल ही इज ए PhD होल्डर। तो उस केस में वो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, और उसमें आपको रूल्स बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। आई मीन यू माइट एंड अप राइटिंग लार्ज नंबर ऑफ रूल्स के भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तभी वो PhD होल्डर है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स माइट एंड अप मेकिंग आर हाई नंबर ऑफ रूल्स एंड मेकिंग एम्बिग्विटी इन दैट बड़ा टफ हो जाएगा। इजी वे एंड बेटर वे इज टू हैव ए मशीन लर्निंग टेक्निक टू गेट इट डन। तो IOB लेबलिंग नाम की एक चीज होती है, फुल फॉर्म है इनसाइड आउटसाइड बिगिनिंग। तो देखते हैं क्या है ये। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ एग्जैक्टली ML is used in the NER system, let's see IOB labeling. तो इनसाइड आउटसाइड बिगिनिंग लेबलिंग इज वन ऑफ द मेनी पॉपुलर फॉर्मेट्स, मल्टीपल हैं, ये सिर्फ अकेला नहीं है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को बड़े बड़े नाम हैंडल करने हैं, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये 6 वर्ड्स का एक नाउन है। एंड देन न्यूयॉर्क इज 2 वर्ड्स नाउन, मोहनदास करमचंद गांधी 3 वर्ड्स नाउन। तो इसको डिटेल में अगर हम देखें तो IOB टैगिंग करेंगे हम। IOB टैगिंग करेंगे ऐसे, अब आपके सामने एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल रोहित गुरुनाथ शर्मा इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। नाउ यहाँ पे जो हमने ये लेबलिंग करी है उसका मतलब ये है कि भाई पर्सन का नाम है PER, और बिगिनिंग है, रोहित इज द बिगिनिंग ऑफ द नेम, आई मीन्स इनसाइड। तो वो आई का मतलब है कि भाई कॉन्टिन्यूएशन है, और पीईआर चल रहा है, पर्सन का नाम है, ये तीनों वर्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये IOB का आपस का मतलब बैकएंड का ट्यूनिंग है, दैट यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ पुटिंग द BPER आई पर, और मतलब बी पर और आई पर ये डाल के इसने ये लगा लिया कि भाई ये मल्टीपल वर्ड्स का नाम है, इतना बड़ा नाम है, इसका पहला वर्ड रोहित है। सिमिलरली फॉर टीम इंडिया, तो वो इज द कैप्टन ऑफ टीम को तो सबको उसने बोल दिया आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड। मेनली वो फोकस कर रहा है नेम एंटिटी पे, तो नेम एंटिटी में इंडिया भी आएगा, बिगिनिंग, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अब ये नाम कोई लंबा तो है नहीं, ये कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या साउथ अफ्रीका तो नहीं है, सिंगल वर्ड है, तो यहाँ पे बी बिगिनिंग तो आएगा ही, जियो पॉलिटिकल एंटिटी। सो हियर वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ NERs, वन इज पर्सन, अदर इज जियोपॉलिटिकल एंटिटी। तो इस केस में हमें पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, ये देख के पता चल गया दैट इसमें मेरा NER क्या है और कितने हैं, एंड व्हाट इज द नेम कनेक्शन। अब जैसे कोई बड़ा नाम भी आ रहा है वो उसको भी हैंडल कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई सेंटेंस कोई होता जाए दैट आई एम प्रोफेसर इन थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो वो चीज़ मल्टीपल वर्ड्स को, थापर इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह, इतना बड़ा वो जो हमारा नाम है, तो थापर को वो बी कर देगा, एंड साथ में ORG कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन बी ऑर्ग, एंड देन आई ऑर्ग मल्टीपल कर देगा। तो पर्सन तो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऐसे करके उसको शो करेगा।
फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप विजिटेड न्यू दिल्ली ऑन February 25 2020। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को उसने बी पर्सन एंड आई पर्सन कर दिया, एंड न्यू दिल्ली को BGPE और IGPE कर दिया, और डेट को वो कर रहा है बी डेट आई डेट आई डेट आई डेट। तो मतलब वो डेट को भी हैंडल कर पा रहा है, वो जियोपॉलिटिकल एंटिटी को भी कर पा रहा है, एंड पर्सन को भी कर पा रहा है। एंड नोट दैट IOB इज नॉट द ओनली टेक्निक दैट माइट बी पॉसिबल। हो सकता है कि लेट्स से आप कोई मेडिकल हेल्थ केयर डेटा सेट उठा रहे हो तो उसमें DTO नाम का कुछ हो, विच इज डिजीज ट्रीटमेंट एंड अदर्स। तो इस केस में इन द इनिशियल स्टेज कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग कीमोथेरेपी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कैंसर वाला अगर डिजीज है तो कीमोथेरेपी यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट है, और बाकी सब ओ हमने कर दिया। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमें IOB लेबलिंग ही करनी है। इट माइट बी डिफरेंट, राइट? You might get different क्वेश्चन इन एग्जाम के भाई ऐसा कुछ है और बेस्ड ऑन दैट आपको करना है, और उसमें कैसे होगा। मतलब हो सकता है कि आपको मैं अलग टाइप का लेबलिंग फॉर्मेट दे दूं एग्जाम में, एंड यू हैव टू वर्क अराउंड दैट। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि IOB लेबलिंग वाला ही आएगा क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ आगे जाके। सो IOB लेबलिंग या फिर कोई भी और लेबलिंग है तो वो कैसे काम करिए वो हमें दिख रहा है और बड़ी क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये सारा NER का पार्ट है। नाउ लेट्स लुक एट दिस कोड ऑफ NER, ठीक है? एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट थिंग टुडे। NER को मैं डिटेल में अभी कोड दिखा देता हूँ, एंड आई विल एंड द सेशन देन। कमिंग बैक टू द कोड। So this is 17, yeah. So let's look at this code and then get this done with. For example, we are searching on Google who is the CEO of Amazon, ऐसे करके name आ जाएगा। And then if I have to get the job done, मैं क्या करूँगा? For example, मैंने यहाँ पे लिखा import species, species the module that we are using. This is the English language core NLP problem, वेब बेस्ड डाटा पे ट्रेनिंग हुई है और स्मॉल मॉडल है, वो सब प्री मतलब ये पहले बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के अपना नाम ऐसे उल्टा लिखा है, साहिल की बजाय लिहास लिख दिया। आई वॉन्टेड टू प्रूव ए पॉइंट, आई विल टेल यू व्हाट लेटर ऑन। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके पूरा सेंटेंस लिख दिया दैट लिहास इज फैकल्टी एट CSED थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और डॉक्यूमेंट प्री प्रोसेसिंग करके मतलब उसमें मॉडल में हमने डाल दिया, जो हमने मॉडल ऊपर उठाया था उसी मॉडल में हमने डॉक्यूमेंट डाल दिया। एंड नाउ वी कैन एक्चुअली गेट द प्री प्रोसेस टोकन्स आउट ऑफ इट। तो POS टैग्स आ जाएंगे, एंड POS टैग्स में यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन बता रहा है लिहाज को, एंड देन फैकल्टी को नाउन बता रहा है, प्रॉपर नाउन CSED, प्रॉपर नाउन थापर इंस्टीट्यूट, प्रॉपर नाउन एंड और ऑफ को वो इग्नोर करा है बीच में, राइट? वो ADP या फिर ये सी कंजेक्टिव मतलब सी कंजंक्शन ऐसे करके बता रहा है। नाउ अगर आप इसको प्रिंट करवा रहे हो कि मुझे सारी एंटिटीज का डिटेल चाहिए, दैट व्हाट इज द टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट में कितने स्टार्टिंग करेक्टर है, क्या मेरा एंड करेक्टर है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, एंड उसका लेबल क्या है। तो इस केस में इसने क्या किया है दैट यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ NER, जो हमने ये करा है ENT वाला एंटिटी का, तो यहाँ पे सिर्फ ये CSCD वाले को NER मान रहा है, मेरे नाम को नहीं मान रहा। अगर मतलब ऐसा मेरा नाम होता, ठीक है, तो उस केस में फिर हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसका रीजन सिंपल ये भी एक हो सकता है दैट बिकॉज दिस डेटा सेट इज ट्रेन्ड ऑन वेब एंड ब्लॉग्स, मतलब वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स, तो लिहास इज नॉट ए वेरी कॉमन नेम। अगर मैं साहिल लिखता तो साहिल वाला केस यहाँ पे चल रहा था, तभी मैंने यहाँ पे नाम उल्टा लिखा, क्योंकि साहिल इज ए वेरी कॉमन नेम एंड इट इज अवेलेबल ऑन वेब पेजेस एंड ब्लॉग्स। तो उसने साहिल को तो ये चीज कर दिया था, यहाँ पे वो दे रहा था आउटपुट, बट मैंने जानबूझ के उल्टा किया क्योंकि मेरे को अब इस चीज को हैंडल करने का तरीका बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेंटेंस अपडेट कर दिया डॉक्टर लिहाज करके, एंड इफ आई सी इट नाउ, नाउ इट इज एबल टू गिव, ये तो चलो दे ही रहा था प्रॉपर नाउन, बट नाउ इफ आई एम doing it through that NER technique, now this is also being recognized as a person। तो वो उसका स्टार्टिंग और एंड करेक्टर बता पा रहा है, तो उसने पर्सन भी बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन भी बता दिया। Now let's say that we have this sentence, Statue of Liberty is situated in New York, USA। तो इसके ऊपर करेंगे तो वो मतलब ये तो हमारा सिंपल POS टैग्स हैं, बट इफ वी डू इट लाइक दिस तो यहाँ पे भी वो दिक्कत आ रही है
कि वो लिबर्टी तो उठा रहा है पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरा नहीं उठा रहा, मतलब ये एज ए 3 वर्ड एंटिटी है तो वो उसको उठाना चाहिए था। ठीक है। एंड न्यूयॉर्क यूएसए, चलो ये तो ठीक है। देन अगर आप उसका आईओबी वाला टैग प्रिंट करवाते हो, सो यू कैन ऐड दिस ENT_IOB अंडरस्कोर। तो उसमें आईओबी के हिसाब से उसने ये भी दे दिया कि ये बिगिनिंग है, मतलब उसने स्टैचू को बिगिनिंग नहीं बोला, लिबर्टी को बिगिनिंग बोला। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, 100% ठीक नहीं है, बट न्यूयॉर्क वाला ठीक है। जैसे न्यू इज द बिगिनिंग वर्ड एंड यॉर्क इज द इनसाइड वर्ड, राइट। तो ऐसा कुछ चीजें हैंडल हो पा रही हैं, बट कुछ कुछ नहीं भी हो रहा। So you can use spaces NER to identify the named entities. तो यहाँ पे quickly we will look into this। एक मिनट का ये रह गया। एनोनिमेशन अगर डेटा करना है आपने, सपोज यू वांट टू डिटेक्ट सम डेटा, फॉर एग्जांपल कोई ईमेल आईडी, ईमेल है, कुछ ईमेल कंटेंट है, एंड यू वांट टू हाइड द पर्सनल थिंग्स आउट ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल मेरे को अपने फैमिली मेंबर्स का सबका नाम यहाँ से डिलीट करना है इस ईमेल में से, एंड आई वांट टू डिटेक्ट इट एंड फॉरवर्ड द डेटा। तो इसको मैं एनोनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं पास करूँगा, आई विल पास इट थ्रू द मॉडल, आई विल लुक एट द एनोनिमाइज्ड, उसको मैंने अब लिस्ट में बना दिया, उसको डाटा स्ट्रक्चर में डाल दिया। बट जहाँ जहाँ पे मेरा लेबल पर्सन आ रहा है, ठीक है, मतलब वी आर ट्राइंग टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, जैसे ऊपर था पर्सन वाले का, जैसे यहाँ पे था, हाँ ये नाम का उसने क्या किया था, स्टार्टिंग और एंड करेक्टर बता दिया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट और एंड करेक्टर तक पूरा स्टार से रिप्लेस कर देंगे। लेबल उठाओ जहां जहां पे पर्सन है उसका स्टार्ट से लेके एंड तक जाओ और हर करेक्टर को स्टार बना दो, एंड देन ज्वाइन करके प्रिंट करवा दो। सो जस्ट बाय दिस कोड यू कैन एक्चुअली रिमूव ऑल द नेम्स आउट ऑफ द ईमेल। तो वो जितने भी नाम थे, फैमिली, ये वो जितना भी लव लिज करके कुछ एंड में नाम था, तो ये लिज वाला नाम भी हमने कर दिया। तो जितने भी नाम थे सारे पर्सन के नाम को उसने स्टार बना दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन बिल्ड ए एनोनिमाइजर ऐप। ठीक है, अगर आपने कुछ डाटा हाइड करना है तो यू कैन मे बी यूज सम अदर टैग्स एंड गेट द जॉब डन। So coming back to the slide, so that's all for today. We will start with the conditional random fields in the next lecture. So I'm ending the session now.